Good morning, students. Welcome to economics class. In the previous class, we had discussed about elasticity of demand, its importance, and the factors affecting elasticity of demand. I had given you the assignment for ED. Hope you might have done it. If any problems are there, I'll be taking Zoom class on Saturday. In that class, we'll be discussing those problems of ED, numericals of ED. Okay. So in this video, I'm going to tell you about the chapter supply. When starting the demand, I had told you that there are two market forces: demand force of the consumers and supply force of the producers. Okay. So in this class, we are going to discuss the second force, supply. Just like demand, everything what we had studied in demand, we'll be studying that in supply also. Okay. So सबसे पहले supply को समझना है, supply है क्या? Supply is also the quantity of a product. Okay. Just like demand. एक बार हम demand की definition बताते हैं. Demand is that quantity of a product which a consumer is able and willing to buy at a particular price during a particular time period. So वहाँ पर भी ये बात थी क्या? Price था, buying power थी, time period था और quantity थी. Same way in supply. Now this is from the side of the manufacturer, seller, producer. So थोड़ा सा deviation आता है क्या? Supply is that quantity of a product which a producer or a seller is able to sell, able and willing to sell at a particular price at a particular time period. Okay. Same way, supply is the quantity of a product which a seller or a producer is able and willing to sell at a particular price at a particular time. Okay. Same way, अगर आप contrast लेके चलेंगे डिमांड और सप्लाई का तो इजीली समझ में आएगा आपको. ओके. सो सप्लाई की डेफिनेशन होप सभी को क्लियर होगी. आई वंस अगेन टेल यू, supply is that quantity of a product which a producer or a seller is able and willing to sell. There it was buying, now it is able and willing to sell at a particular price during a particular time period. Okay. The same way in demand, we had studied demand function. Here we are studying supply function. Now what is supply function? Supply function is functional relationship between supply and the factors affecting it. Okay. Now supply and the factors affecting it, same way, Sx, supply of good product X, functional relationship. और वो फैक्टर कौन कौन से हैं? जस्ट लाइक डिमांड, कुछ फैक्टर इसके सप्लाई के भी हैं. पहला सेम है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. डिमांड में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है. यहां पर प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो हमारे प्रोड्यूसर को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, वो ज्यादा सप्लाई करेगा. सो प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है और प्राइस के कम होने पर सप्लाई कम होती है. ओके. द नेक्स्ट वन इज आईसी, इनपुट कॉस्ट. तो चूंकि सप्लाई हो रही है, प्रोडक्शन से ही सप्लाई आती है, इनपुट कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. यानी कि प्रोडक्शन की कॉस्ट अगर हमें कम पड़ रही है, कोई ऐसा रॉ मटेरियल सस्ता पड़ना शुरू हो गया है, तो जब कॉस्ट कम पड़ेगी हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो सप्लाई ज़्यादा करेंगे. इसका मतलब यह हुआ कि कॉस्ट कम होने पर सप्लाई बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ने पर सप्लाई कम हो जाएगी. इसका मतलब इनपुट कॉस्ट और सप्लाई का इनवर्स रिलेशनशिप हो गया. नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स वही हैं जैसे आपके कॉम्प्लीमेंट्री, आपके सप्लीमेंट्री, अदर गुड्स जो भी फैक्ट्री में बन रहे हैं या दूसरी जगह बन रहे हैं, उन सब का प्राइस हमारी सप्लाई को अफेक्ट करेगा. राइट. ओके. सो देखना पड़ेगा कि हमें क्या, हमारा जो राइवल प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या चल रहा है. ओके. अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो इसका मतलब वो डिमांड पे इंपैक्ट डालेगा. डिमांड हमारी बढ़ेगी तो हमें सप्लाई बढ़ानी होगी. ओके. सो दिस इज द रिलेशनशिप देयर. देन टेक्नोलॉजी. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि अचानक टेक्नोलॉजी में कोई अपग्रेडेशन हो गया, और जब भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है बच्चों तो प्रोडक्शन बढ़ता है. टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने पर प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ जाएगी.
राइट? टेक्नोलॉजी विल गो अप, सप्लाई विल गो अप। टेक्नोलॉजी विल गो डाउन, कोई डाउनग्रेड हो गया, कोई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई है, अब वो चल नहीं रही, तो उसका सप्लाई में नेगेटिव असर पड़ेगा, कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज गोल ऑफ द फर्म। देखिए हमारी फर्म का गोल क्या है। कुछ फर्म्स क्या चाहती हैं कि उनकी सेल बढ़े, वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़े, और कुछ चाहती हैं प्रॉफिट बढ़े। जो प्रॉफिट मोटिव से काम कर रही हैं फर्म्स, वो सप्लाई को एकदम से नहीं बढ़ाएंगी, ओके, तो वो भी है। और जो फर्म्स वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ाना चाहती हैं, तो वो कम मार्जिन पर, कम प्राइस पे भी अपनी सप्लाई को बढ़ाएंगी। तो गोल ऑफ फर्म भी सप्लाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लास्ट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जस्ट लाइक डिमांड। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर किसी प्रोड्यूसर को, सेलर को हो गया कि नेक्स्ट मंथ में मुझे ज़्यादा प्राइस मिलने वाला है, तो वो आज अपनी सप्लाई कम कर देगा। और उसे अगर लगता है कि अगले महीने प्राइस डाउन होने वाला है, तो वो आज अपनी सप्लाई बढ़ा देगा। तो ये सारे फैक्टर्स बनते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, और इन दोनों का, इनका फैक्टर्स का और सप्लाई का रिलेशनशिप है सप्लाई फंक्शन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। हमने जो पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में, बिल्कुल वैसे ही स्टडी करना है लॉ ऑफ सप्लाई को। कैसे? सिट्रस पैरिबस, आपको पता ही, मैंने बताया था। सिट्रस पैरिबस का मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अदर थिंग्स मीन्स फैक्टर्स अदर देन प्राइस। सो सिट्रस पैरिबस, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। मतलब क्या हो गया कि बाकी सब फैक्टर जो भी थे इस प्राइस को छोड़ के, इनपुट कॉस्ट, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, टेक्नोलॉजी, गोल ऑफ द फर्म, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ये सब चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ सप्लाई। तो सप्लाई और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब दोनों वेरिएबल एक ही दिशा में जाएंगे। अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। और इसके पीछे मैंने बता दिया आपको, क्योंकि प्राइस के कम होते ही प्रॉफिट कम होता है हमारे सप्लायर का, हमारे सेलर का, तो वो सप्लाई कम करेगा। और प्राइस बढ़ेगा तो उसको प्रॉफिट मिल रहा है ज़्यादा, तो वो सप्लाई को बढ़ा देगा। अब इस बात को हम समझ सकते हैं टेबल से। प्राइस हमने 2, 4, 6 ऐसे बढ़ाया, क्वांटिटी हमने 2, 4, 6 किया। सेम वे, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है। अगर हम एक फिक्स कर लें 4 पर, अगर हमने प्राइस कम किया था तो सप्लाई भी कम हुई थी, प्राइस बढ़ा था तो सप्लाई भी बढ़ गई थी। और ऐसा जब भी होगा, जब भी दो वेरिएबल्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी, तो उसका जो कर्व होगा वो अपवर्ड राइजिंग होगा, जैसे ये बना है ऊपर की तरफ। डिमांड में क्या था? डाउनवर्ड स्लोपिंग था, यहां पर अपवर्ड राइजिंग है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस, वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई के भी अजम्पशंस है बच्चों। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, सेम वे सिट्रस पैरिबस, इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। मैं बताता हूं आपको, इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन इनपुट कॉस्ट, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अदर गुड्स, देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी स्टेट, देयर इज नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म, and there is no change in the future expectation. Means factors other than price are not changing. So they are the assumptions of law of supply. अगर आप डिमांड से कंपेटिव करते जाएंगे तो आपको आसानी से समझ आता जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, जैसे हमने कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड किया था, आपको याद ही होगा कौन कौन से कॉजेज थे उसमें? इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एंड नंबर मल्टीपल यूज ऑफ द प्रोडक्ट। यहां पर सिर्फ 3 कॉजेज हैं हमारे लॉ ऑफ सप्लाई के। कौन कौन से हैं आइए बताएं आपको। सबसे पहला है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव का मतलब वही है कि जैसे आपका प्राइस बढ़ गया, अभी आपकी कॉस्ट में तो कोई चेंज आया नहीं, तो प्राइस के बढ़ते ही आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। और हर प्रोड्यूसर, हर सेलर प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, तो उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, इसलिए वो ज्यादा बाय करता है। यहां पे क्वेश्चन पूछते हैं ना हमसे कि व्हाई डज अ सेलर सप्लाई मोर एट हाई प्राइस। हाई प्राइस पे उसका प्रॉफिट बढ़ता है, इसलिए वो अपनी सप्लाई बढ़ा देता है, ओके। नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रा स्टॉक क्लियरेंस। हर एक प्रोड्यूसर के पास उसके गोडाउन में, उसके वेयर हाउस में कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा होता है। जब प्राइस बढ़ता है तो प्रॉफिट से इंस्पायर होके या अपने स्टॉक को खत्म करने के लिए भी वो सप्लाई को बढ़ा देता है। तो जो एक्स्ट्रा स्टॉक क्लियरेंस है वो भी सप्लाई को बढ़ाने के लिए प्रॉफिट मींस सपोर्टिव रहता है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स। जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो वो लुक्रेटिव बन जाता है दूसरी फर्म्स के लिए भी। कई फर्म्स और एंटर कर जाती है मार्केट में और वो भी सप्लाई बढ़ा देती हैं।
समझ रहे हैं? पहले मान लो 2 या 3 फर्म्स थी, वो सप्लाई कर रही थी, प्राइस उस चीज का बढ़ता जा रहा है, तो अब बाकी फर्म्स भी इससे अट्रैक्ट होकर मार्केट में आ जाएंगी और वो सप्लाई को बढ़ा देंगी। इट मींस प्राइस के बढ़ने पर एक तो प्रॉफिट मोटिव सप्लाई को बढ़ा रहा है, दूसरा एक्स्ट्रा स्टॉक जो पड़ा था फर्म के पास उसको क्लियर करने के लिए सप्लाई बढ़ रही है, और तीसरा नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में बढ़ जाएंगी जो कि हमारी सप्लाई को बढ़ाएंगी। ओके, सो दे आर द कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। होप बात समझ आ रही होगी आपको। लास्ट वन इज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे हमने एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड किया था, वैसे ही हम कर रहे हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। मींस वेयर लॉ ऑफ सप्लाई फेल्स, कहां पर ये एप्लीकेबल नहीं है, कहां पे हम हमारे प्राइस के बढ़ने पे भी हम सप्लाई नहीं बढ़ाते, कहां पे हमारा प्राइस कम होने पर हम सप्लाई कम नहीं कर पाते। ओके, तो आज देखते हैं। सबसे पहला आता है बच्चों एग्रो प्रोडक्ट्स। अब देखिए जो एग्रो प्रोडक्ट्स यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, दे डिपेंड ऑन मॉनसून, क्लाइमेट कंडीशंस। अब अगर मान लो आज टमाटर का प्राइस ज्यादा मिल रहा है, तो टमाटर जितना प्रोड्यूस हो चुका है उतना ही तो होगा, उसका प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि वो तो क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता था, राइट। तो सप्लाई में वेरिएशन नहीं ला सकते हम, क्योंकि उसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है, एक लिमिटेड क्रॉप आई हुई है हमारे पास, उतनी ही हम सप्लाई कर पाएंगे, तो प्राइस के बढ़ने पे भी सप्लाई को नहीं बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेटस गुड्स। स्टेटस गुड्स जैसे बताया था आपको, ये हाई इनकम ग्रुप वाले लोगों की चीज होती है, जैसे मर्सिडीज है, आईफोन है, तो ये जो चीजें हैं, BMW कार है, ये जो चीजें हैं इनकी ये लिमिटेड क्वांटिटी में बनती हैं, और इसका सेगमेंटेशन भी फिक्स्ड है कि इस पर्टिकुलर इनकम ग्रुप वाले बनी हुई है, तो उसकी सप्लाई भी हम इधर उधर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी डिमांड भी इंटैक्ट होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज पेरिशेबल गुड। अब एग्रो प्रोडक्ट्स में भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका जो जल्दी खराब होने वाले होते हैं, ओके, तो उनकी सप्लाई फटाफट करनी जरूरी होती है, प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब देखिए मान लीजिए एक किसान का प्रोडक्ट जो है वो उसके खेत में तैयार है, टमाटर है या कुछ ऐसी चीजें जो खराब होती जल्दी, तो ऐसे प्रोडक्ट जैसे अपना ब्रेड है, मिल्क है, तो इनकी सप्लाई को आप रोक नहीं सकते। प्राइस की वेरिएशन पर आप सप्लाई के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप रोकेंगे तो वो आपके लिए खराब हो जाएगी, तो आपको वो सप्लाई करनी है। तो सप्लाई की जो वॉल्यूम है वो प्राइस से अफेक्ट नहीं हो पाती। द लास्ट वन इज रेयर गुड्स। रेयर गुड्स का मतलब आपके आर्टिस्टिक चीजें हैं, पेंटिंग्स हैं, वो चीजें जो बहुत खास लोगों के लिए खास लोग बनाते हैं। अब इसके भी ये नहीं होता कि मान लो किसी को किसी पेंटिंग के प्राइस ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा पेंटिंग्स बनाना शुरू कर देगा, नहीं, क्योंकि ये तो एक उसकी आर्टिस्टिक उसकी एक कला है जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही आपको सप्लाई कर पाएगी। तो इसके अंदर भी होता है कि जो रेयर गुड्स है, जो एंटीक गुड्स है, उनकी क्योंकि अवेलेबिलिटी लिमिटेड है तो उनकी सप्लाई भी प्राइस की वजह से इधर उधर नहीं हो सकती। ओके, तो अपनी इस वीडियो में हम लोगों ने समझ लिया है सप्लाई क्या होती है, अ क्वांटिटी which a seller or a producer is willing and able to sell at a particular price during a particular time period. फिर हमने सप्लाई फंक्शन समझा, फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, और वो फैक्टर्स सारे ये रहे। उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई हमने समझा, सिट्रस पेरिबस, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस, व्हेन प्राइस राइजेस सप्लाई आल्सो राइजेस, व्हेन प्राइस फॉल्स सप्लाई आल्सो फॉल्स। फिर इसको हमने टेबल और डायग्राम में भी देख लिया। देन हमने अजम्पशंस देखी, क्या कि देयर इज नो चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। उसके बाद कॉजेज में 3 देखे, प्रॉफिट मोटिव के लिए, एक्स्ट्रा स्टॉक क्लियरेंस के लिए, एंड नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो जाती हैं जब प्रॉफिट बढ़ता है तो। और लास्ट वन एक्सेप्शंस, जहां पर हमारा लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता। एग्रो प्रोडक्ट्स है, स्टेटस गुड्स है, पेरिशेबल गुड्स है और रेयर गुड्स है। होप सारी बात समझ आ रही है आपको। जो भी आपकी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में, पर्सनल में, आई विल मेक इट क्लियर। थैंक यू।